So in the yesterday's lecture, we dealt with income elasticity, where we said income elasticity is the responsiveness of quantity demanded with respect to change in the income of the individual. If income of the individual changes, by how much quantity demanded changes is measured in terms of income elasticity. The formula is, right, change in the percentage change in the quantity demanded divided by percentage change in the income. I can also write the formula like absolute change in the quantity demanded upon absolute change in the income multiplied by old income upon old quantity demanded, right? Then there is a relation between the, like, proportion of the income spent on a commodity and its elasticity, income elasticity. If as income increases, you spend more, your proportion increases, right? Proportion of the income spent on the commodity increases, I say it is relatively elastic, greater than 1. If proportion of the income spent decreases, I say it is relatively inelastic, less than 1. If the proportion of the income spent remains constant, I say the income elasticity for that commodity is equal to 1. Numerically, right, we can derive total 6 values in respect of income elasticity. Price elasticity के 5 values मिलते हैं, income elasticity के 6 values मिलते हैं. So when percentage change in the income brings equal change in the quantity demanded, we say unitary elastic. Income elasticity is unitary elastic 1. When small percentage change in the income brings larger percentage change in the quantity demanded, answer is greater than 1. हम उसको बोलते हैं relatively elastic income elasticity. Generally luxury के केस में होता है greater than 1. If a larger change in the income brings smaller change in the quantity demanded, the answer is less than 1, positive but less than 1, right? Relatively inelastic income elasticity, necessities have less than 1 income elasticity. Then again, if any change in the income does not changes the quantity demanded, commodity is income like perfectly inelastic with respect to changes in the income, answer is 0. If very small change in the income brings infinite change in the quantity demanded, I will say it is an infinite income elasticity, that is perfectly elastic income elasticity. And when increase in the income decreases the quantity demanded, or decrease in the income increases quantity demanded, opposite relation है. So numerator positive है तो denominator negative है, like numerator negative है तो denominator positive है, तो answer will be negative. In such case, income elasticity is negative. Such goods which shows inverse relation between the income and the demand, right? Such goods are called as inferior goods. Inferior goods are the goods having negative income elasticity. फिर मैंने एक डायग्राम निकाली थी, मैंने बोला कि इनकम इलास्टिसिटी अगर लेस देन 0 है, निगेटिव है, उन गुड्स को इंफीरियर गुड्स बोला जाता है. गुड्स हैविंग 0 इनकम इलास्टिसिटी हम उनको न्यूट्रल गुड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूट्रल गुड्स. एंड इफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर गुड इज अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, मतलब पॉजिटिव कब रहेगा? व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन इनकम डिक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, पॉजिटिव रिलेशन है, राइट? आंसर विल बी पॉजिटिव. नॉर्मल रिलेशन है, नॉर्मल गुड्स, उसमें भी एक इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव बट लेस देन 1, उनको हम नेसेसिटी बोलते हैं. और इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, हम उनको कौन से क्या बोलते हैं? हम उनको लग्जरी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लग्जरी. नाउ, और फिर मैंने कल एक एग्जांपल पे एंड किया था. इनकम इंक्रीज होती है, राइट, एंड देयरफॉर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बीडी डिक्रीजेस. मैं बोलता हूं, राइट, आप इफ यू try to find out the answer, change in the quantity demanded is negative upon increase in the income, negative upon positive, answer will be negative. So iski income elasticity negative rahegi. Inferior goods, BD will be called as inferior goods. Quantity demanded of cigar increases, in quantity demanded numerator positive, denominator is also positive, answer will be positive. This is a normal goods, and usme, right, if you compare BD and cigar is a superior to BD. ठीक है?
नाउ मैंने बोला था कि मैं आपके साथ डायग्राम डिस्कस करूंगा, ध्यान देना। मैं वही बोलूंगा जो मैंने प्राइस इलास्टिसिटी में बोला था। हाई, जितना ज्यादा फ्लैटर उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, जितनी ज्यादा स्टीपर उतनी ज्यादा इन इलास्टिसिटी। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी 0 होती है, या फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी, स्टीपर द कर्व लेस इज द इलास्टिसिटी, सिंपल वर्ड में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज a graph. This is a graph. This is quantity demanded. This is income. Y axis is income axis, बराबर? नहीं, x axis is quantity demanded axis. ठीक है, देखते हैं। If, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। This is a curve. Don't call it a demand curve. This is not a demand curve. Demand curve में this axis should be the price of the commodity. So this is not a demand curve. If this is a curve, so we are checking income and the quantity demanded. हम क्या चेक करें? Income and the quantity demanded. So हम income elasticity स्टडी कर रहे हैं। इसका आंसर इनफाइनाइट है। Any like income, try to understand. Small increase in the income, example, when income is less like this, income इतनी है, you are not buying anything, your demand is 0. Small increase in the income, आपकी थोड़ी इनकम क्या इंक्रीज हो गई, यू स्टार्टिंग बाइंग एवरीथिंग, जितना मिलता है उतना बाय कर रहे हो, जितना मिलता है उतना बाय कर रहे हो। स्मॉल इंक्रीज इन द इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड टू इनफाइनाइट। पहले थोड़ी कम इनकम थी, आपकी डिमांड ऑलमोस्ट 0 थी, 0 डिमांड थी, थोड़ी क्या इनकम इंक्रीज हो गई, आप OQ1, OQ2, OQ3, OQ4 जितना है उतना डिमांड कर रहे हो। समझ में आ रहा है? सो आई विल से small change in the income, small change in the income creates infinite change in the quantity demanded, right? In answer is infinite, income elasticity infinite है। This can be another, like आपकी इनकम कितने भी होने दो, इनकम 1 होने दो, इनकम लेवल 2 होने दो, इनकम लेवल 3 होने दो, कुछ भी होने दो, your demand remains same, OQ only। इनकम कितनी भी होने दो, कम होने दो, ज्यादा होने दो, कुछ भी होने दो, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन सेम। सो आई विल से इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक। प्राइस इलास्टिसिटी जैसे ही है, ठीक है। सो इसका आंसर इज 0, ठीक है, इसका आंसर 0। दिस इज एग्जैक्टली 45 डिग्री, 45 डिग्री। यहां पे चेंज इन द इनकम ब्रिंग्स इक्वल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पे आंसर इज 1, इनकम इलास्टिसिटी 1 है। दिस इज समवॉट फ्लैटर, दिस इज समवॉट स्टीपर, कर्व स्टीपर है। जितना ज्यादा फ्लैटर उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, जितना ज्यादा स्टीपर उतनी कम इलास्टिसिटी। सो दिस इज फ्लैटर, इसका आंसर ग्रेटर देन 1 है। इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। यहां पे इट इज स्टीपर, इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। सो यू कैन सी, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा ये हो रहा है ना, 1 मिनट देना।
हाँ ठीक है, अब क्लियर होगा, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो ये मैंने जानबूझ के डायग्राम निकाली है। द सिंगल डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है। हम्म, थोड़ा उसको शिफ्ट करता हूं ठीक से। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर 5 और एक होता है, सो दिस इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। देखो इनकम एंड डिमांड पॉजिटिव होते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। डिमांड कर्व जैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, अपवर्ड स्लोपिंग है कर्व्स, सो दे आर शोइंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। देयर कैन बी अनदर डिमांड कर्व, लाइक डिमांड कर्व नहीं है, अनदर कर्व लाइक दिस नेगेटिव वाली। The relation between income and the quantity demanded is inverse, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका आंसर निगेटिव है। सो एक ही डायग्राम में मैंने आपको कितने दे दिए, टोटल मैंने आपको 6 के 6 डायग्राम्स दिखाए इनकम इलास्टिसिटी के। सो अगर इनकम इलास्टिसिटी 0 है तो वर्टिकल लाइन पैरेलल टू इनकम एक्सिस। इनकम इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू क्वांटिटी डिमांडेड एक्सिस एक्स एक्सिस को। प्राइस इलास्टिसिटी भी अगर इनफाइनाइट होती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, अगर 0 होती है तो इन लाइक वर्टिकल लाइन होती है, दोनों में सेम है, राइट। ये जो 1 वाला है रिलेट लाइक यूनिटरी इलास्टिक, वो 45 डिग्री कर्व है फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। मैं वहां पे यूनिटरी में बोलता था इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री, प्राइस इलास्टिसिटी में बोलता था डाउनवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री इज 1। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 45 डिग्री बट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम मुझे कल आपके साथ डिस्कस करना था। आप कहाँ पे भी देख सकते हो, लाइक कोई भी एक खाली डायग्राम निकालो, आप इजीली समझ सकते हो, ध्यान देना। सपोज ये आपकी डायग्राम है एंड दिस इज द कर्व। दिस इज द कर्व। ठीक है, इसकी इनकम इलास्टिसिटी ढूंढनी है। सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे योर इनकम इज ओ आई, क्वांटिटी डिमांडेड इज ओ क्यू। योर इनकम इंक्रीजेस टू ओ आई वन, quantity demanded increases to OQ1. Try to understand. So can I say this change is suppose 10%, this change is suppose 15%, answer is greater than 1. 15% change in the quantity demanded is because of 10% change in the income. 15% upon 10%, 1.5 answer है. And this is a luxury because answer is greater than 1. So अगर जिनको लिखना है, try to understand, ये luxury है. ग्रेटर देन 1 लग्जरी, इक्वल टू 1 ऐसे कोई गुड्स नहीं होते, लेस देन 1 नेसेसिटीज, 0 न्यूट्रल एंड नेगेटिव इंफीरियर गुड्स। लिख लो इंफीरियर गुड्स। एंड व्हाई इट इज अ पॉजिटिव स्लोप, ये 0 to infinity, 0 to infinity, why is it positively slope? Because they gives positive relation, they gives positive relation between income and the demand. इंफीरियर गुड्स की नेगेटिवली स्लोप्ड है, इंफीरियर गुड्स की। अब ध्यान देना, मैंने एक डायग्राम निकाली है, मैं जानबूझ के ये चीजें समझा रहा हूं, मैंने पहले भी समझा, मैं फिर भी समझा रहा हूं, ध्यान देना। सपोज दिस इज वन डायग्राम, दिस इज अनदर डायग्राम। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, यहाँ पे इनकम है। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम लॉ ऑफ डिमांड की रहेगी, सेकंड डायग्राम इज नॉट डिमांड कर्व, ध्यान देना।
यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग है, डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग DD. So this is showing positive relation between the price and the quantity demanded, which is exception to law of demand. This is of Giffen's good. This is of Giffen's good. समझ में आ रहा है? Then inferior goods के केस में क्या होता है? Try to understand. Initially, as income increases, quantity demanded also increases. Initially, as income increases, x एक्सिस पे जब इनकम, y एक्सिस पे जब इनकम इंक्रीज हो रही है, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है, बट अप टू ए सर्टेन लेवल, बियॉन्ड ए पर्टिकुलर इनकम, राइट, आपकी इनकम इंक्रीज होती है बट डिमांड डिक्रीज होती है, लाइक दिस. सो later on, up to this point, ये वाले पॉइंट तक, विथ इंक्रीज इन इनकम या इस इनकम तक, समझ में आ रहा है? up to this income, there is a positive relation between income and the quantity demanded. Thereafter, increase in income actually quantity demanded क्या कर रहा है? Decrease कर रहा है. This is, ये जो कर्व है ना, ये पोर्शन, सपोज दिस इज एग्जांपल A, B and C. ये जो BC जो पार्ट है ना, दिस इज इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स समझ में आ रहा है? BC पार्ट इज इंफीरियर गुड्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये जो AB पार्ट है ना, यहाँ पे इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे इलास्टिसिटी पॉजिटिव है. पॉजिटिव लिख लेना, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी. ये नॉर्मल गुड्स है. इनिशियली एवरी गुड इज ए नॉर्मल, इनिशियली एवरी गुड इज ए नॉर्मल गुड. later on, if you can afford higher price substitute, तो वही इंफीरियर बन जाता है. यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव है. सो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, नेगेटिव रिलेशन है. जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा नेगेटिव, अगर अपवर्ड स्लोपिंग है तो पॉजिटिव. सो AB पोर्शन इज ए नॉर्मल गुड, BC पोर्शन इज इंफीरियर गुड. क्लियर है? आगे. सो ये मैं जानबूझ के लिख के दे रहा हूं. डोंट कॉल दिस इज ए इंफीरियर गुड्स. गिफन्स गुड एंड इंफीरियर गुड्स अलग अलग होते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है. और ये डायग्राम आपको वही दिखा रही है जो येलो कर्व है, राइट. इट इज शोइंग निगेटिव रिलेशन. डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे आ रही है, देखो ऐसे नीचे आ रही है. ये भी वैसे ही C to B नीचे है. आप बोलेगे सर ऊपर जा रही है, आप ऊपर से नीचे देखो ना, निगेटिव स्लोप है. समझ में आ रहा है? सो पॉजिटिवली स्लोप है मतलब आंसर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव स्लोप है मतलब आंसर नेगेटिव रहेगा. दैट्स इट. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा इनकम इलास्टिसिटी का डिस्कशन खत्म होता है. इनकम इलास्टिसिटी हेल्प्स यू टू डिवाइड गुड्स इनटू नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स को भी हमें हेल्प करता है इनटू नेसेसिटी गुड्स एंड लग्जरी गुड्स. ठीक है. और ये उसकी डायग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. आगे. ठीक है. सो आगे से अगर आपको ऐसे डायग्राम दिखती है और बोलते हैं विच पोर्शन इज ए इंफीरियर गुड्स पोर्शन, नेगेटिवली स्लोप जो रहेगा ना, BC इज एन इंफीरियर गुड्स, AB पोर्शन इज ए नॉर्मल गुड्स. वो नॉर्मल फिर लग्जरी या नेसेसिटी है, डिपेंड्स ऑन द स्लोप. अगर वो स्टीपर होगा, अगर ये पार्ट स्टीपर है तो मैं उसको नेसेसिटी बोलूंगा, अगर वो फ्लैटर है तो मैं उसको लग्जरी बोलूंगा. डिपेंड्स. समझ में आ रहा है? ऐसे. आगे. बट आंसर इज ग्रेटर, इट इज अ पॉजिटिव. AB पोर्शन की इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, BC पोर्शन की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है. आगे. क्लियर है यहाँ पे? नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी. क्रॉस इलास्टिसिटी. When prices of other goods changes demand for the commodity, वो कितने से चेंज करते हैं? If you try to measure that, if you try to quantify that change, that is called as, right, cross elasticity.
Cross elasticity is responsiveness of quantity demanded of a commodity with respect to change in the prices of other goods. So iska formula EC, cross elasticity is denoted by EC, is equal to percentage change in the quantity demanded of a commodity X because of percentage change in the price of the commodity Y. Or I can also denote this like it is change in the quantity demanded of a commodity X upon change in the price of commodity Y multiplied by price of commodity Y upon, ठीक है, this is old price of commodity Y upon old quantity. ठीक से लिखता हूं. ओहो, बेस ओल्ड रहता है ना हमारा, राइट. ओल्ड प्राइस अपॉन, राइट, ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स. प्राइस इलास्टिसिटी का यही फॉर्मूला था ना. क्या प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था? ओल्ड क्वांटिटी अपॉन लाइक चेंज इन द क्वांटिटी अपॉन चेंज इन द प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी. इनकम इलास्टिसिटी पर यही फॉर्मूला था. चेंज इन द क्वांटिटी अपॉन चेंज इन द इनकम मल्टीप्लाई बाय ओल्ड इनकम अपॉन ओल्ड क्वांटिटी. क्रॉस इलास्टिसिटी का भी वही फॉर्मूला है. चेंज इन द क्वांटिटी अपॉन चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स मल्टीप्लाई बाय ओल्ड प्राइस ऑफ अदर गुड्स, राइट, upon change, right, old quantity of our commodity. This is the formula. So अगर दूसरे की प्राइस चेंज होती है और हमारी डिमांड चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी. एग्जांपल, एग्जांपल, when price of tea was ₹10, its quantity demanded was 100 and quantity demanded of coffee was 50. When price of tea was 10, उसकी खुद की डिमांड 100 थी and quantity demanded of coffee was 50. When price of tea increases to ₹12, टी की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी. टी की डिमांड डिक्रीज नहीं बोलने का, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज बोलो और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है. क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट्स टू इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, खुद की इट्स क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट्स टू 100 से आई विल से 70, ठीक है. एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी, डिमांड ऑफ कॉफी, कॉफी की प्राइस चेंज नहीं हुई है, कॉफी के लिए अदर फैक्टर चेंज हुआ है, प्राइस ऑफ टी चेंज हुआ है, इसलिए कॉफी की डिमांड इंक्रीज होगी. सो डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीजेस टू, मैं वर्डिंग देखो कैसे यूज कर रहा हूं, इंक्रीजेस टू. खुद की प्राइस चेंज होगी तो मैं कॉन्ट्रैक्शन, खुद की प्राइस चेंज होगी तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज करता हूं. किसी और की प्राइस चेंज होगी तो मैं इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज यूज करता हूं. तो यहाँ पे टी की प्राइस चेंज हो रही है इसलिए कॉफी की डिमांड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. इंक्रीजेस टू आई विल से 50 से 60,
Find out elasticities. Find out elasticities. यहां पे ध्यान देना. Solution. Price of tea. ठीक है. कैसे लिखूं, कैसे लिखूं, कैसे लिखूं? Price of tea. ठीक है. Quantity demanded of tea. Quantity demanded of coffee. Old. When price of tea was 10. When price of tea was 10, quantity demanded of tea was 100 and इसकी 50 थी. New. When price of tea increases to 12, टी की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई टू 70 एंड कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो गई टू 60. ठीक है. परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज ढूंढना है. प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज है? प्राइस ऑफ टी में कितना परसेंटेज है? 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100. कैन आई से प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%. प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज प्लस लिखा है मैंने जानबूझ के, इंक्रीज बाय 20%. 10 की 12 हुई है. सो 2 रुपए इंक्रीज है ऑन 10 रुपीज. 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100. 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द टी. 20% increase in the price of the tea contracts demand of tea by 30 से डिमांड कम हुई है. पहले 70 था, अब पहले 100 था, अब 70 हुआ है. तो कहने से 30 से डिक्रीज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू 100 ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100. सो कहने से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुए बाय 30%. डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई है बाय 30%. ठीक है. एंड कॉफी की डिमांड इंक्रीज हुई है 50 से 60 हुई है. सो 10 से इंक्रीज हुई है विथ रिस्पेक्ट टू 50 ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100. इट इज इंक्रीज बाय 20%. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, quantity demanded of tea has decreased by 30%. However, quantity demanded of coffee has increased by 20%. So, therefore, price elasticity of tea. प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? खुद के प्राइस चेंज होने की वजह से खुद की क्वांटिटी कितने चेंज हो रही है. परसेंटेज चेंज in the quantity demanded of tea upon percentage change in the right price of tea, which is equal to price of tea is increased by 20%. Therefore, quantity demanded of tea decreased by 30%. So the answer is minus 1.5, which is equal to 1.5. 1% change in the price of tea changes demand of the tea by 1.5%. 1.5 जब मैं बोलता हूं price elasticity of the tea is 1.5, इसका मतलब क्या? 1% change in the price of tea will change the quantity demanded of tea by 1.5%. आगे, it is relatively elastic. Greater than 1 है, relatively elastic. इसको क्या बोलते हैं? Relatively elastic. Greater than 1, luxury. आगे, ठीक है. Now, cross elasticity
of coffee with respect to change in the price of tea. It क्रॉस इलास्टिसिटी टी की नहीं है, क्रॉस टी की प्राइस इलास्टिसिटी है. टी की डिमांड चेंज हो रही है बिकॉज टी की प्राइस चेंज हो रही है, तो टी के लिए प्राइस इलास्टिसिटी है. एंड कॉफी की डिमांड चेंज हो रही है बिकॉज टी की प्राइस चेंज हो रही है, तो कॉफी के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी है. ये समझ में आना चाहिए. विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ टी, चेंज इन प्राइस ऑफ टी. किसकी डिमांड चेंज हो रही है? कॉफी की. तो हम कॉफी की इलास्टिसिटी ढूंढ रहे हैं. कौन? अगर कॉफी की प्राइस की वजह से कॉफी की डिमांड चेंज होती तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कॉफी होती. बट कॉफी की डिमांड चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ टी, तो कॉफी के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी है. ये समझ लेना. ठीक है. देयरफॉर सो कैन आई से परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी with respect to percentage change in price of tea. Therefore answer, because of 20% increase in the price of tea, because of 20% increase in the price of tea, right, कॉफी की डिमांड 20% से इंक्रीज हुई है. आंसर इज 1. आंसर इज 1, पॉजिटिव 1. So relation between price of tea and demand of coffee is positive. टी की प्राइस इंक्रीज होगी, कॉफी की डिमांड इंक्रीज होगी. टी की प्राइस इंक्रीज होगी, कॉफी की डिमांड इंक्रीज होगी. टी की प्राइस कम होगी, कॉफी की डिमांड डिक्रीज होगी. दे आर सब्स्टिट्यूट्स. व्हेन द रिलेशन बिटवीन द टू गुड्स इज लाइक दैट, एक की प्राइस इंक्रीज होने से दूसरी की डिमांड इंक्रीज होती है, एक की प्राइस कम होने से दूसरी की डिमांड डिक्रीज होती है. मतलब एक महंगा हो गया तो दूसरा कंपैरेटिवली सस्ता हो जाएगा और उसकी डिमांड इंक्रीज होगी. एक सस्ता हो गया, उसकी प्राइस कम हो गई, एज कंपेयर टू सेकंड वो महंगा हो जाएगा और उसकी डिमांड कम हो जाएगी. ऐसे गुड्स विच शोज पॉजिटिव रिलेशन with respect to price of one commodity and demand of another commodity, they are substitutes and उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है. सब्स्टिट्यूट्स की क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है. टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट्स. सो आंसर इज 1, पॉजिटिव 1. हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव है इसलिए दे आर सब्स्टिट्यूट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको वही समझाने का ट्राई कर रहा हूं. क्रॉस इलास्टिसिटी में demand change in the demand of a commodity with respect to change in the price of another commodity, change in the demand of coffee with respect to change in the price of tea. So आपको समझ में आना चाहिए प्राइस इलास्टिसिटी किसकी है, क्रॉस इलास्टिसिटी किसकी, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया. नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. क्रॉस इलास्टिसिटी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. लिख लेना. क्रॉस इलास्टिसिटी फर्स्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए. सब्स्टिट्यूट्स मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, ध्यान देना. दिस इज माय डायग्राम. दिस इज quantity demanded of coffee. Quantity demanded of coffee. This is price. अगर प्राइस ऑफ कॉफी है तो ये प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगा. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ कॉफी, ये प्राइस इलास्टिसिटी की डायग्राम हो जाएगी. मुझे क्रॉस इलास्टिसिटी ढूंढना है. दिस इज प्राइस ऑफ टी. डायग्राम भी बहुत सारी चीजें आपसे बात करती है. व्हेन प्राइस ऑफ टी, व्हेन प्राइस ऑफ टी इज लेस, चाय बहुत सस्ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी इज लेस. व्हेन प्राइस ऑफ टी इज हायर, चाय महंगा है तो डिमांड फॉर कॉफी विल बी आल्सो हायर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लाइक दिस.
क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. वेन प्राइस ऑफ टी, मैं यहां पे ये निकालता हूं, क्लिक होगा. When price of tea is OP, quantity demanded of coffee is OQ. When price of tea increases to OP1, quantity demanded of coffee increases to OQ1. Yeah, if price of coffee decreases from OP1 to OP, quantity demanded of coffee will decrease from OQ1 to OQ. अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, पॉजिटिव रिलेशन है. तो अगर इनकी इलास्टिसिटी ढूंढते हो तो आपको पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा. सो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी इज ए पॉजिटिव. सब्स्टिट्यूट्स की अगर आप डायग्राम निकालते हो, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, अगर वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है तो वो सब्स्टिट्यूट की, ये डायग्राम ऑफ सब्स्टिट्यूट है. सो आई विल से कॉफी एंड टी आर सब्स्टिट्यूट. तो आप यहाँ पे ऐसे लिखो, don't say coffee and tea, this is commodity X and this is commodity Y. Quantity demanded of commodity X and price of commodity Y shows positive relation. Quantity demanded of commodity X is directly related to price of commodity Y. मतलब ऐसे लिखना चाहिए, उल्टा फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे वो समझाना इजी हो जाएगा. ध्यान देना, ध्यान देना. प्राइस ऑफ कमोडिटी Y increases, quantity demanded of commodity X also increases. Price of commodity Y decreases, वो सस्ती होती है तो सामने वाले की डिमांड कम हो जाती है. पॉजिटिव रिलेशन है. सो प्लस अपॉन प्लस आंसर इज प्लस, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव आंसर इज स्टिल प्लस. सो व्हेन इन क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, वी कॉल goods are substitutes. Substitutes. Goods are substitutes. So substitutes have which kind of cross elasticity? Substitutes have positive cross elasticity. Goods having positive cross elasticity are said to be substitutes. Then इसमें लिख लेना, जितना ज्यादा हायर आंसर रहेगा ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट. लिख लेना, हायर द क्रॉस इलास्टिसिटी, हायर द क्रॉस इलास्टिसिटी, राइट, more they are closer, more they are substitutes, closer the substitutes. ऐसे लिखो, closer the substitutes. Example, suppose these are two commodities X and Y commodities, इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी 3 है. There is A and B other commodities, इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी 5 है. Which are more close substitute? A and B are more close substitute as compared to X and Y. ये एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है. इनमें सबसे ज्यादा नजदीक कौन से? A and B, बिकॉज इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी इनसे ज्यादा है. सो A and B are close substitute of each other as compared to X and Y. X and Y भी close substitute है बिकॉज आंसर पॉजिटिव है. दे आर सब्स्टिट्यूट. X and Y की क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव 3 है, A and B की क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव 5 है. इसका मतलब दे आर सब्स्टिट्यूट्स. इन पेयर्स में विच इज मोर क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसकी क्रॉस इलास्टिसिटी हायर होगी, they will be treated as more close substitute. So A and B are close substitute. And there is a P and Q, two commodities, P and Q. एक और पेयर है और इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, सबसे हाईएस्ट क्रॉस इलास्टिसिटी. तो P and Q are called as perfect substitute. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मैंने एक वर्डिंग ऊपर यूज किया था, जितनी ज्यादा क्रॉस इलास्टिसिटी, जितनी हायर क्रॉस इलास्टिसिटी
उतने ज्यादा वो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उतने वो नजदीक आएंगे। जितनी जितनी ज्यादा क्रॉस इलास्टिसिटी होती जाएंगी उतने नजदीक नजदीक वो आएंगे, क्लोज सब्स्टिट्यूट रहेंगे। अगर उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, those goods are perfect substitute and therefore in perfect competition जो गुड्स होते हैं उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। लिख लेना, इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन द क्रॉस इलास्टिसिटीज ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स इज इनफाइनाइट, प्राइस इलास्टिसिटी आल्सो इनफाइनाइट, क्रॉस इलास्टिसिटी आल्सो इनफाइनाइट। इसलिए डिमांड कर्व उनकी हॉरिजॉन्टल होती है। लिख लेना, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, हमने देखा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, इतना तो सबको पता है, 12th में सीखा है। मतलब उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन द सब्स्टिट्यूट्स इज इनफाइनाइट बिकॉज दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, सो आगे नेक्स्ट। और ये आंसर पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। लाइक डिमांड कर्व निगेटिव होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इसलिए डिमांड कर्व गिव्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ना, तो वो प्राइस इलास्टिसिटी होती है, इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होती है, बट हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं। आगे सेकंड, स्लोप डिसाइड्स द इलास्टिसिटी। स्लोप पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी पॉजिटिव रहेगी, स्लोप नेगेटिव है तो इलास्टिसिटी नेगेटिव रहती है। सेकंड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डायग्राम। Suppose this is quantity demanded of vehicles. This is price of petrol. When petrol prices are right, when petrol prices are higher, very high, demand for vehicles is very less. So this is the point. ये वाला point आ गया. When petrol prices are very high, the demand for vehicle is very less. When petrol is very cheap, demand for vehicle is very high. ये वाला पॉइंट मिल जाएगा. So if you join these two curves, आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा. And the right, this relation is a negative. So when price of the petrol is more high, price of petrol is high, quantity demanded of vehicle is less. पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो व्हीकल की डिमांड डिक्रीज होगी. अगर पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो व्हीकल की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. ध्यान देना, ओपी OP1, OQ OQ1, या इसको OQ1 बोलता हूं, इसको OQ बोलता हूं. ठीक है, when price of the petrol increased, OP से OP1 हो गया. प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, OP से OP1 हो गया. डिमांड फॉर द व्हीकल्स डिक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1. व्हेन प्राइस इज OP, डिमांड इज OQ. आप पॉइंट ए पे हो, आप पॉइंट ए पे हो. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टू OP1, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई टू OQ1. नाउ यू आर शिफ्टेड टू पॉइंट बी. Don't say this is demand curve because this is not a demand curve, because x एक्सिस पे व्हीकल की क्वांटिटी है और y एक्सिस पे व्हीकल की प्राइस नहीं है. प्राइस ऑफ पेट्रोल है, सो भले ही डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों ना हो, डोंट कॉल इट इज अ डिमांड कर्व. आपका फंडामेंटली रॉन्ग हो गए. डोंट से इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. नो, इट इज नॉट एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. एक्चुअली इट इज अ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ व्हीकल. आप बोलोगे डिमांड डिक्रीज होती है सर, आपने कर्व शिफ्ट करनी चाहिए. अरे ये डिमांड कर्व नहीं है कि डिमांड कर्व को शिफ्ट करूं. दिस इज नॉट एट ऑल डिमांड कर्व. आगे, अगर डिमांड कर्व होती तो शिफ्ट हो जाती, डिमांड कर्व होती तो शिफ्ट हो जाती. दिस इज नॉट डिमांड कर्व. ठीक है, आगे
डिमांड कर्व के लिए एक्स एक्सिस में प्राइस ऑफ व्हीकल होना चाहिए था। आगे, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस फ्रॉम OP1 टू OP, उल्टा देखो, OP1 से OP, जब प्राइस OP थी तो डिमांड OQ1 थी, अब प्राइस कम हो गई, OP हो गई, तो डिमांड इंक्रीजेस टू OQ1. So can I say, try to understand the relation between price, अब मैं पेट्रोल की जगह Y बोलता हूं, Y एक्सिस पे Y की प्राइस है, X एक्सिस पे X की डिमांड है, प्राइस ऑफ Y एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी X, प्राइस ऑफ Y इंक्रीजेस, पेट्रोल महंगा हो गया, व्हीकल की डिमांड कम हो गई, प्राइस ऑफ Y डिक्रीजेस, पेट्रोल की प्राइस कम हो गई, सस्ता हो गया, व्हीकल की डिमांड इंक्रीज हो गई। इट इज इनवर्स रिलेशन, हमने डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड में भी देखा था। सो अगर रिलेशन इनवर्स है तो स्लोप डाउनवर्ड रहेगा, स्लोप डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट रहेगा, डाउनवर्ड है मतलब इलास्टिसिटी निगेटिव रहेगी। इफ यू फाइंड आउट क्रॉस इलास्टिसिटी इज निगेटिव, क्रॉस इलास्टिसिटी इज निगेटिव, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Complementary goods have which elasticity? Complementary goods have negative cross elasticity. Positive cross elasticity मतलब substitutes, negative cross elasticity मतलब complementary goods. ठीक है, देन ऐसे नहीं होता कि जितना निगेटिव रहेगा उतने वो कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, ऐसे नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट्स में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, क्लोजर सब्स्टिट्यूट, ऐसे टर्म्स हो सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसे कोई टर्म्स होती नहीं। जैसे मैंने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए बोला, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी उतने क्लोज वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसलिए अगर इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो जाती है, क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो जाती है, तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर कमोडिटी, या मेरी डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ अनदर आर इनवर्सली रिलेटेड। उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो मेरी डिमांड डिक्रीज होगी, उसकी प्राइस कम होगी तो मेरी डिमांड इंक्रीज होगी। वो सस्ता होता है तो मेरी डिमांड इंक्रीज होगी, वो महंगा होता तो मेरी डिमांड डिक्रीज होती है। अगर वो इनवर्स रिलेशन है तो यू विल गेट निगेटिव स्लोप एंड देयरफॉर द क्रॉस इलास्टिसिटी इज निगेटिव। आगे यहां पे लिख लेना, if, right, two goods are complementary, two goods are complementary, their cross elasticity is always negative, उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा निगेटिव होती है। however if two goods have negative cross elasticity, doesn't necessarily be complementary. It can be because of any reason. क्या बोला, ध्यान देना, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो आंख बंद करके बोलो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव है। इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, आंख बंद करके बोलो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव है। बट अगर कोई गुड्स की क्रॉस, दो गुड्स है उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव है, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी हमेशा निगेटिव होती है, बट अगर कोई दो गुड्स के बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव है, दे मे बी कॉम्प्लीमेंट्री, दे मे नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड इज unrelated goods. Third, unrelated goods, related goods.
अनरिलेटेड गुड्स मतलब एक की प्राइस दूसरे की डिमांड से कोई लेना देना नहीं है, दे आर अनरिलेटेड, ना ही वो सब्स्टिट्यूटेड ना ही वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ध्यान देना कर्व कैसे बनेगी, ठीक है, कर्व कैसे बनेगी वो समझना है, ध्यान देना। दिस इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी y, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी x, प्राइस ओपी है, क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू है, प्राइस ओपी 2 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड सेम ही है, फर्क ही नहीं पड़ता, प्राइस कितनी भी हो वाई की, एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस ओपी 3 हो गई, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, प्राइस कम कर दी फिर भी डिमांड उतनी है, like this. So can I say change in the price of y does not have any impact on the quantity demanded of x? Change in price of y, right, doesn't have any impact on quantity demanded of x. X is irresponsive to change in the price of y. Therefore, cross elasticity of unrelated goods, EC ना, cross elasticity is zero. देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, प्राइस ऑफ y, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x, प्राइस ऑफ y इंक्रीजेस, y की प्राइस इंक्रीज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड भी x होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, प्राइस ऑफ y डिक्रीज होती है, y सस्ता होता है तो x की डिमांड कम हो जाती है, इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, y की प्राइस इंक्रीज होती है, x की डिमांड कम हो जाती है, y की प्राइस कम हो जाती है, x की डिमांड इंक्रीज होती है, लेस देन नेगेटिव, लेस देन 1 नहीं नेगेटिव। आई शुड नॉट से, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 1 नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव बोलना चाहिए, सॉरी ये पॉजिटिव बोलना चाहिए, ये पॉजिटिव बोलना चाहिए, यस यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा होगा, परफेक्ट। प्राइस ऑफ x इंक्रीजेस, डिमांड, प्राइस ऑफ y इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ x आल्सो इंक्रीजेस, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। Price of y decreases, demand of x also decreases, I will say cross elasticity positive है, because relation positive तो elasticity भी positive रहेगी, and they are substitutes। फिर वो close है या नहीं है, depends on their elasticity, higher the elasticity higher is the closeness, close substitutes, ठीक है। आगे, if price of y increases, y महंगा होने से x की डिमांड डिक्रीज होती है, इनवर्सली रिलेटेड, y सस्ता होने से x की डिमांड इंक्रीज होती है, पेट्रोल सस्ता होगा तो व्हीकल की डिमांड इंक्रीज होगी, इनवर्सली रिलेटेड, आंसर रिलेशन इनवर्स है, आंसर हैज टू बी नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। एंड द लास्ट, प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इसमें कोई चेंज नहीं, राइट, इट हैज नो इंपैक्ट, आई विल से आंसर इज जीरो। इसको अनरिलेटेड गुड्स बोला, एक्स एंड वाई विल बी ट्रीटेड एज अनरिलेटेड गुड्स, अनरिलेटेड गुड्स लिख लेना ये सब चीजें, उसकी डायग्राम अनरिलेटेड गुड्स की डायग्राम ऐसे है, राइट, और ये ऐसे है, लिख लेना। This is change in the price of y, change in the quantity demanded of x.
ठीक है, लिखो दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी. सो क्रॉस इलास्टिसिटी 3, मैं डायग्राम निकालता हूं कल जैसे. दिस इज नंबर लाइन 0, नेगेटिव, पॉजिटिव. 0 क्रॉस इलास्टिसिटी, अनरिलेटेड गुड्स. Negative cross elasticity, complementary goods. There is no concept of perfect complementary. Yeah? Complementary goods. Positive substitutes. एंड अगर इनफाइनाइट है हम बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. लिख लेना. मैं हर इलास्टिसिटी को बहुत डिटेल में समझा रहा हूं बिकॉज दिस चैप्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे. ऑलवेज रिमेंबर, बहुत चांसेस हैं राइट इस पे, इस टाइप के क्वेश्चन पे एग्जाम लाइक ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैंने ऑलमोस्ट आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 3 to 4 days ऑन एक्सप्लेनिंग द इलास्टिसिटी इटसेल्फ. हर चीज बहुत डीप में समझाई है. सो पढ़ना भी उतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और जो मैं लिख के दे रहा हूं प्लीज आप आपके नोट्स ठीक से रखो, लिखो. बिकॉज जो भी मैं लिख के देता हूं ना, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्लियर है. सो दिस इज योर cross elasticity which talks about change in the price of another commodity creates impact on my demand. Cross elasticity. और ये उसके डायग्राम्स थे. क्लियर है. अच्छा, कौन कौन सी इलास्टिसिटी देख ली हमने. प्राइस इलास्टिसिटी, उसके मेजरमेंट के 3-4 ऑप्शंस थे. एक था परसेंटेज मेथड, दूसरा था पॉइंट इलास्टिसिटी, एक था पॉइंट इलास्टिसिटी, दूसरा था उसको ज्योमेट्रिक मेथड भी यूज कर सकते हो. फिर एक था आर्क मेथड, राइट, एक्सपेंडिचर मेथड, रेवेन्यू मेथड, मेनी. इनकम इलास्टिसिटी के लिए ऐसे कोई मेथड्स नहीं, क्रॉस इलास्टिसिटी भी ऐसे कोई मेथड्स नहीं. सिंपल फॉर्मूला होता है राइट, ये वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा है. अच्छा, क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला नहीं लिखा था क्या हमने. क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिखा था, देखो, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई. अब लास्ट इलास्टिसिटी हम स्टडी करने जा रहे हैं जो है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी. लिख लेना एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी. Generally we say advertisement is one of the determinants of the demand. Regular advertisements creates demand for your product, इसलिए advertisement करना जरूरी होता है. So if you change the advertisement budget by how much the quantity demanded changes, अगर वो आप स्टडी कर रहे हो, you are studying the advertisement elasticity. अगर you are a business manager and you says अगर मैं 20% से मेरा advertisement budget increase करता हूँ तो डिमांड कितने से चेंज होगी मेरी कमोडिटी की. यू आर स्टडिंग द एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी. अगर मैं 15% से एडवर्टाइजमेंट बजट कम ज्यादा करता हूं तो डिमांड कितने से इंक्रीज, डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है. क्वांटिफाई करने का ट्राई कर रहा हूं. चेंज इन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट डिमांड पे स्टडी कर रहे हो. यू आर स्टडिंग राइट एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी एंड देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी इज राइट. आई थिंक एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी इज राइट रिटन लाइक EA. आई डोंट रिमेंबर वेरी फ्रैंक, बट फर्क क्या पड़ता है हमें. ठीक है, आई नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला तो हर जगह पे सेम ही है. कैन बी रिटन एज EA. लेट मी चेक इन द मॉड्यूल. यस, EA स्मॉल a इज EA. A stands for advertisement. ठीक है,
P stands for price, EP मतलब price elasticity, EY, Y stands for income, income elasticity, EC cross elasticity यानी EA एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी. ऐसे 4 इलास्टिसिटीज हमारे बुक्स में, हमारे सिलेबस में. इट इज परसेंटेज चेंज in the quantity demanded of a commodity divided by percentage change in the advertisement expenditure. ठीक है. Suppose I say I increase my expenditure by 20%. If I say I increase advertisement expenditure by 20%, my demand increases by 30%. So it is greater than 1. मैं उसको बोलता हूं रिलेटिवली इलास्टिक है. क्या बोलता हूं? रिलेटिवली इलास्टिक. If I increase advertisement expenditure by 20%, demand increases but just by 10%, my advertisement elasticity is less than 1. इसको हम रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलते हैं. I increase advertisement expenditure by 20%, demand exactly increases by 20%. I will say advertisement elasticity is 1. You can get many answers. So, right? बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आगे नेक्स्ट. उसके बाद यस. So advertisement elasticity is अच्छा is always positive. लिख लेना is always positive because advertisement always create demand. Always positive. जैसे इनकम इलास्टिसिटी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है. प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, हाउएवर वी कंसीडर इट पॉजिटिव. एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव. ऐसे भी हो सकता है कि you increased advertisement expenditure by 20%. Now you are spending more. 20% से advertisement expenditure increase किया and there is no change in the demand. पहले जितना खर्चा करते थे उतनी डिमांड अभी भी है. So I will say answer is 0. So advertisement elasticity can be 0, can be less than 1, can be equal to 1, can be greater than 1. It can be anything. When I say it is greater than 1, when small change in the advertisement expenditure creates bigger impact on demand. Small change in the advertisement expenditure leads to increase in the quantity demanded by more percentage than the increase in the advertisement expenditure. 30% से advertisement expenditure increase किया, right? आपकी डिमांड 40% से इंक्रीज हो गई. 4/3 greater than 1. आपकी डिमांड 50% से इंक्रीज हो गई. 50/30% percent cancel. 5/3 greater than 1. In some cases, you increase the advertisement expenditure, demand also increases, but demand increases by lesser proportion than increase in the advertisement expenditure. आपने advertisement expenditure 30% से increase किया, demand increase just by 20%. So 20% upon 30%, answer is less than 1. मतलब advertisement का impact है, but less impact है. If advertisement elasticity is greater than 1, मतलब it is responsive, demand for the commodity is responsive to the advertisement. मतलब जितना ज्यादा एडवर्टाइज करोगे उतनी ज्यादा डिमांड बनेगी. जनरली लग्जरी आइटम्स, कंज्यूमर गुड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. लग्जरी आइटम्स, राइट, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है. इसलिए आप कभी भी न्यूज चैनल ओपन करो, कोई भी चैनल ओपन करो, आपको उनकी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी. बिकॉज उस पे आप जितना खर्चा करोगे उससे ज्यादा डिमांड इंक्रीज होगी. देयर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. ऑन द कॉन्ट्री, जनरली नेसेसिटीज के केस में कभी आपने देखा है कि कॉलेज वाले एडवर्टाइज कर रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा के रखे. हाँ, नया कॉलेज है तो एडवर्टाइज करते हैं, बट ओवरऑल इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखोगे जितनी लग्जरीज के लिए होती है.
जितना एयरटेल, वोडाफोन, रेट, जियो, इनकी एड देखोगे उतनी कॉलेजेस की एड टीवी पे नहीं आती है, हॉस्पिटल्स की एड टीवी पे नहीं आती है, मेडिकल्स की एड टीवी पे नहीं आती है, क्योंकि दे नो इवन इफ दे इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट देयर डिमांड विल नॉट रिस्पॉन्ड दैट मच, इसलिए दे डोंट स्पेंड दैट मच ऑन, करते हैं एडवर्टाइजमेंट, ये नहीं कि वो एडवर्टाइज नहीं करते, बट उस एडवर्टाइजमेंट का इंपैक्ट उतना होता नहीं उनके सेल्स पे या उनके डिमांड पे। सो जितने से वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे परसेंटेज में, उससे कम से उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। सो जनरली बिकॉज पीपल उतना ही परचेस करेंगे जितना उनकी जरूरत है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन थर्ड, मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं बट ओके, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। जनरली आई डोंट गिव दैट सच, ये एक सेकंड। ऐसे केसेस में जहां पे जितना एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज हो रही है उतने से डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, आंसर इज 1। एंड इफ change in the advertisement does not change the demand, answer is 0. So advertisement elasticity is always positive. It can be 0, it can be 1, it can be less than 1, it can be greater than 1. Try to understand. So ये है आपका एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। मैं डायग्राम भी निकाल सकता हूं, अगर बुक में नहीं है बट मैं समझा रहा हूं, मैं खुद होके डायग्राम कर सकता हूं। अब आपको इतना तो डायग्राम करना आना चाहिए। अब एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बजट और एक्सपेंडिचर इन रुपीज टर्म। ये वाली डायग्राम आप कितना भी खर्चा करो, आप कितना भी खर्चा करो, डिमांड रिमेन सेम, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन सेम, दिस इज एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी 0। ये वाला 45 डिग्री वाला, 45 डिग्री वाला यहाँ पे आंसर 1 है। चेंज इन द एडवर्टाइजमेंट क्रिएट्स सेम इफेक्ट ऑन द डिमांड, दिस इज मोर स्टीपर। और मैंने आपको पहले ही बोला जितना स्टीपर उतना कम इलास्टिक, दिस इज लेस देन 1। दिस इज मोर फ्लैटर, जितना फ्लैटर उतना इलास्टिक, ग्रेटर देन 1। इनफाइनाइट नहीं होता है, बिकॉज ऐसे नहीं कि थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज करो कि बहुत सेल हो जाएगा, ऐसे जनरली नहीं होता है। न्यूमेरिकली आप ले सकते हो तो वो फ्लैटर कर्व हो जाएगी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। दिस कैन बी 4 आंसर्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। लिख लेना, वो डायग्राम भी निकालो, डायग्राम भी निकालो, जल्दी करो। बच्चे होशियार है, बच्चों को पता है मैंने किसके बारे में बोला। लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपको इंटरप्रिटेशन समझाऊंगा, ध्यान देना। इफ आई से प्राइस इलास्टिसिटी इज 3, व्हाट डू यू मीन बाय 3? तो बोलो 1% चेंज इन द प्राइस, 1% न्यूमरेटर में चेंज इन द प्राइस रहता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज इन द क्वांटिटी रहता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में राइट चेंज इन द प्राइस रहता है, बराबर। सो ध्यान देना, सो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड रहती है, चेंज इन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड यहाँ पे प्राइस। व्हेन दे से प्राइस इलास्टिसिटी इज 3, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप बोलते हो सर ग्रेटर देन 1 है, रिलेटिवली इलास्टिक है, लग्जरी आइटम होगा, मतलब सर स्मॉल चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स लार्जर चेंज इन द डिमांड, सब एक्सेप्टेड है। इसका मतलब ये होता है 1% चेंज इन द प्राइस, 1% चेंज इन द प्राइस, डिमांड चेंजेस बाय 3%। अगर आप प्राइस इंक्रीज करते हो 1% से, डिमांड विल डिक्रीज बाय 3%। अगर प्राइस 1% से कम करते हो, डिमांड विल इंक्रीज बाय 3%। निगेटिव रिलेशन होता है, इतना तो पता होना चाहिए। इफ समवन से प्राइस इलास्टिसिटी इज 0.75, ऐसे लिखा है, इसका मतलब 1% चेंज इन द प्राइस, 1% change in the price changes demand by 0.75%.
If you increase price by 1%, demand will decrease by 0.75%. If you decrease the price by 1%, demand will increase by 0.75%. Income elasticity is example 5. इसका मतलब पॉजिटिव 5, इसका मतलब 1% चेंज इन द इनकम, राइट. इनकम इलास्टिसिटी में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम. 1% change in the income will change the demand by 5%. If you increase income by 1%, if customers की income 1% से increase होगी, हमारी demand 5% से increase होगी, 5 times increase होगी. अगर customers की demand 1% से कम हो जाएगी, हमारी demand 5 times से कम हो जाएगी. Positive है ना? If someone say the income elasticity is -3, इसका मतलब 1% change in the income creates 3% negative change in the demand. If income increases by 1%, demand will decrease by 3%. If income decreases by 3%, demand will increase by 3%. समझ में आ रहा है? If cross elasticity is 2, what do you mean this? Cross elasticity में क्या होता है? Numerator upon denominator. Quantity demanded of commodity X, suppose, upon price of commodity Y. Y एक्सिस है ना, इसलिए प्राइस ऑफ Y लिखते हैं. ध्यान देना. So I will say 1% change in the price of Y, 1% change in the price of Y changes demand for X by 2%. So अगर, और ये पॉजिटिव है, मतलब ये सब्स्टिट्यूट है, ये पॉजिटिव है मतलब सब्स्टिट्यूट है. अगर 1% से प्राइस इंक्रीज होती है, अगर Y की प्राइस 1% से इंक्रीज होती है, X की डिमांड 2% से इंक्रीज होगी. अगर Y की प्राइस 1% से कम होती है, अगर Y की प्राइस 1% से कम होती है, तो X की डिमांड 2% से कम हो जाएगी. आंसर इज पॉजिटिव. इफ दे से क्रॉस इलास्टिसिटी इज -4, मतलब अपॉन 1. निगेटिव है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. इफ देयर इज अ चेंज, Y की प्राइस 1% से इंक्रीज होगी, Y की प्राइस 1% से इंक्रीज होगी, X की डिमांड 4% से कम होगी. अगर Y की प्राइस 1% से कम होगी, X की डिमांड 4% से इंक्रीज होगी. उल्टा होना चाहिए, इसलिए आंसर निगेटिव है. समझ में आ रहा है? इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूं मैं. एंड इफ दे से एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी इज टेक 1.5. एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन एडवर्टाइजमेंट, राइट ना? वो परसेंटेज वगैरह रहेगा, वो जाने दो समझने के लिए. इसका मतलब 1% change in the advertisement creates 1.5 times impact on the demand. अगर आप 1% से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हो, डिमांड विल इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स. अगर आप 1% से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कम करते हो, डिमांड विल डिक्रीज बाय 1.5 टाइम्स. पहले से ट्राई टू अंडरस्टैंड. जनरली इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. समझ में आ रहा है? ये समझ में आना चाहिए. Then, is there any question? अगर किसके क्वेश्चन है, I will take those questions. If there are questions, I will take those questions. Then last 10 minutes and the chapter elasticity is over. Last 10 minutes and the elasticity concept is over. मैंने कौन कौन सी elasticity कवर किए? Price, income, cross and advertisement. And the last, right? लिख लेना, determinants of price elasticity. Determinants of price elasticity, ये 12th में भी था. Determinants of price elasticity. Price elasticity also or determinants of elasticity. Demand elasticity. Demand elasticity also depends on many factors like 1. लिख लेना 1. ठीक है. First लिखो availability of the substitutes.
ऑफ सब्स्टिट्यूट, कितने सब्स्टिट्यूट है आपके कम्युनिटी को? जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतनी हायर इलास्टिसिटी, बिकॉज राइट, अगर आप, मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, अगर मैं थोड़े से भी प्राइस चेंज करूंगा ना, थोड़े से भी, तो राइट, मेरे कस्टमर के लिए बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, माय डिमांड विल ड्रास्टिकली डिक्रीज. सो स्मॉल चेंज इन द प्राइस impacts my demand largely, so relatively greater than one. So price elasticity के हम देख रहे हैं, availability of the substitute, more the substitute, more the substitutes, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतनी हायर इलास्टिसिटी, हायर द इलास्टिसिटी. इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में there are perfect substitutes and there are large number of substitutes and they are perfect. Every seller is selling the same commodity, many substitutes and perfect substitutes, इसलिए वहां पे infinite price elasticity होती है. वही मोनोपोली के केस में, देयर आर नो सब्स्टिट्यूट्स, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, लेस देन 1 होती है. मोनोपोली की इलास्टिसिटी जनरली लेस देन 1 होती है, बिकॉज उसके केस में सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते. इवन इफ ही इंक्रीज द प्राइस, स्टिल बायर विल बाय फ्रॉम हिम, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट, उनके पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है. सो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतनी हायर इलास्टिसिटी, जितने कम सब्स्टिट्यूट, लेस द सब्स्टिट्यूट्स, लोअर इज द इलास्टिसिटी. ठीक है, लॉजिकल है. सेकंड, बिकॉज अगर सब्स्टिट्यूट है तो अगर आप प्राइस के साथ छेड़छाड़ करोगे ना, तो सब्स्टिट्यूशन की वजह से लाइक पीपल, अगर आप प्राइस इंक्रीज करो तो वो चले जाएंगे आपसे, आपकी डिमांड ड्रास्टिकली कम हो जाएगी. दूसरा लिख लेना, एबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, कौन कौन से थे सब्स्टिट्यूट पे डिपेंड. अच्छा, एबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जनरली हायर प्राइस गुड्स जो बहुत कॉस्टली होते हैं, और एकदम लोअर प्राइस गुड्स, कॉस्टलीएस्ट और चीपेस्ट. और चीपेस्ट, दे आर रिलेटिवली इनइलास्टिक. उनकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, उनके प्राइस चेंज होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज या तो बहुत उनकी प्राइस बहुत ही हाई है या बहुत ही चीप है, फर्क ही नहीं पड़ता हमें. राइट, लाइक न्यूज़पेपर हम डेली देखते हैं क्या, कि आज ₹1 का न्यूज़पेपर लिया, कल आया 1.50 का, नहीं मत दे भाई. हम ऐसे नहीं करते, हम फिर भी लेते, बिकॉज इट इज वेरी 1.5 इज वेरी लेस. संडे को ₹5 का न्यूज़पेपर, आपको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज प्राइस इज वेरी लेस. तो यार आपको फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप इनइलास्टिक हो. आपको फर्क पड़ता है, मतलब आप इलास्टिक हो. आपका नेचर प्राइस सेंसिटिव है, इलास्टिक हो आप विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइसेस. सो रिलेटिवली इनइलास्टिक. अब डायमंड की प्राइस डेली चेंज हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी हो, मुझे आई एम नॉट कंसर्न, आई एम लेस. एक्चुअली मेरी तो इलास्टिसिटी 0 है फिर इन दैट केस, कितने भी प्राइस चेंज हो. ठीक है, देन अगर मीडियम रेंज है, मीडियम प्राइस्ड, yes they bother us, right, relatively elastic. थर्ड, ठीक है, लिख लेना थर्ड. यस, मैं मॉड्यूल में देखता हूं पोजीशन. अच्छा, पोजीशन, वो पॉइंट्स देखने पड़ेंगे. पोजीशन, ठीक है, इन कंज्यूमर्स बजट. आप उस पे कितना खर्चा करते हो. If that commodity occupies substantial position like EMI, आपके इनकम में से मैक्सिमम पोर्शन EMI में जाता है,
और थोड़ा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया तो लोग बवाल मचाते हैं, यार इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया. दे आर रिस्पॉन्सिव because their maximum income is gonna spend on that commodity or that service or that EMI. So they are sensitive. On similar basis, newspaper, right? आपके डे वेजिटेबल्स वगैरह, राइट, आप उन पे नॉट दैट मच अमाउंट स्पेंड करते हो. बटन्स, राइट, मैस्टिक्स वगैरह, तो उनकी प्राइस चेंज होने से आपको नहीं फर्क पड़ता. आपको फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप इनइलास्टिक हो. आपको आपके मम्मी पापा डांटते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. आप नालायक हो, इनइलास्टिक हो बोलो. आगे से नालायक मत बोलो, इनइलास्टिक है, हमें फर्क नहीं पड़ता. नहीं मुझे बहुत, मैं सेंसिटिव हूँ, सुशांत सिंह जैसा, वो इलास्टिक है. कमिट, उसने डायरेक्टली सुसाइड कर दिया, सपोज एग्जांपल. सो जिनको फर्क पड़ता है वो इलास्टिक है, ऐसे. सो पोजीशन इन द कंज्यूमर्स बजट लाइक इज वेरी लेस. कंज्यूमर स्पेंड्स वेरी लेस अमाउंट, और लाइक इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. लेस इंपॉर्टेंट इन द कंज्यूमर्स बजट, लेस इंपॉर्टेंट. हम उसको इनइलास्टिक बोलते हैं. उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, उनकी प्राइस चेंज होने से इतना फर्क नहीं पड़ता. बट अगर मेजर है, कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर में वो इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल स्टूडेंट है और उसके लिए जो पॉकेट मनी उसमें से वो मेस लगाता है, तो मेस पे उसका मैक्सिमम खर्चा होता है, और मेस का टिफिन का अगर रेट चेंज हो गया उसका पूरा बजट हिल जाता है. एंड ही इज रिस्पॉन्सिव, सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट चेंज. उसके लिए वो इलास्टिक है, राइट. सो मोर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, हम उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक. इसमें मैं एग्जांपल दे सकता हूं, लाइक EMI वगैरह, उनके प्राइजेस अगर चेंज होती हैं, राइट, हमें इंपैक्ट पड़ता है. आपके मम्मी पापा के केस में ट्यूशन फीस चेंज होती है. आपके स्कूल में देखो, स्कूल में अगर स्कूल फीस इंक्रीज होती है तो घर वाले, बहुत लोग वहां पे स्ट्राइक भी करते हैं. क्यों? बिकॉज फॉर देम द स्कूल फीस इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट दैट दे स्पेंड फ्रॉम देयर इनकम. एंड अगर उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई तो दे आर, जो लोग वहां पे खड़े हैं स्ट्राइक के लिए, वो इलास्टिक इन द नेचर है, और जो घर में बैठे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए वो इन इलास्टिक नेचर है. समझा? फोर्थ, कैन यू पोस्टपोन, राइट, पोस्टपोन द कंजम्पशन, मतलब अर्जेंसी, पोस्टपोन द कंजम्पशन. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. इफ यू कैन पोस्टपोन द कंजम्पशन, आंसर कैन बी यस. किस केस में यस होता है? लाइक लग्जरी आइटम, चलो बाद में परचेस करते हैं, अभी प्राइस ज्यादा है, जाने दो, बाद में परचेस करते हैं. लेकिन कोई एग्जांपल बीमार है और उसको एग्जांपल वो हॉस्पिटल में है और बोलते कि आज ट्रीटमेंट करोगे तो 1 लाख खर्चा आएगा, 1 मंथ के बाद आ जाओ, हम 80,000 में करवा के दोगे. आप उसको क्या बाहर निकालोगे? नहीं, बोलेगे कुछ नहीं होता, करो. कैन यू पोस्टपोन द कंजम्पशन? कैन यू पोस्टपोन लाइक दैट ऑपरेशन? नहीं. क्या चलो 2 दिन के बाद डिस्काउंट मिलने वाला है, 2 दिन के बाद ऑपरेशन करते हैं? ऐसे थोड़ी होता है. जो अर्जेंट है उसकी इलास्टिसिटी लेस होती है, इनइलास्टिक होता है, बिकॉज यू कैन नॉट पोस्टपोन द कंजम्पशन. आपको ब्लड चाहिए और अभी जरूरत है, तो उसकी नीड अर्जेंट है, तो उसकी इलास्टिसिटी, आप कितना भी पैसा हो आप देने के लिए रेडी होगे. इवन इफ प्राइस इज हायर, स्टिल यू विल बाय इट. बट अगर आपको जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ ले लो ब्लड, ले लो ब्लड, ले लो ब्लड, चलेगा क्या इसे? आप बोलोगे सर जरूरत नहीं है. जब जरूरत नहीं है, आप बोलते हो जब चाहिए तब बोलेंगे. सो अगर ऐसे केसेस में, राइट, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर दैन वन. अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो, जनरली लग्जरी आइटम्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, उनकी डिमांड पोस्टपोन कर सकते हो, दे आर लेस अर्जेंट. इन दैट केस अगर पोस्टपोन हो सकता है तो दे आर रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, इलास्टिक. एंड अगर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, मतलब अब भी चाहिए, अर्जेंट है, दैट इज अर्जेंट, अर्जेंसी,
तो यू आर रेडी टू पे इवन हायर प्राइस, रिलेटिवली इनइलास्टिक, आपको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 5 एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे उसके बाद या इस पॉइंट को ये भी ले सकते हो, विच नीड इट सेटिस्फाइज। इफ द कम्युनिटी सेटिस्फाइज अर्जेंट नीड, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। इफ डज नॉट सेटिस्फाई अर्जेंट नीड, उसकी डिमांड राइट इन इलास्टिक होगी, रिलेटिवली इलास्टिक होगी। फिर नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस, उस कम्युनिटी के कितने यूजेस हो सकते हैं, हायर द यूज हायर द इलास्टिसिटी। आई कैन पुट दैट कम्युनिटी फॉर मल्टीपल यूजेस, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज अगर वो चीज सस्ती हो जाती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी अगर सस्ती हो जाती है, आई स्टार्ट यूजिंग इट फॉर कुकिंग, सब चीजों के लिए मैं यूज करना स्टार्ट कर देता हूँ। बट अगर वही वो महंगा हो जाता है तो आई विल पुट इट ओनली फॉर इंपॉर्टेंट यूजेस। सो चेंज इन द प्राइस में ड्रास्टिकली मेरा रिएक्शन चेंज हो जाता है, मैं बहुत सेंसिटिव हो जाता हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग दैट कमोडिटी फॉर मल्टीपल पर्पज एंड उसकी प्राइस चेंज हो गई तो आई विल यूज ओनली फॉर द इंपॉर्टेंट पर्पज। सो if number of uses that commodity can be put is higher, right, the elasticity will be also higher, and अगर वो less uses है, ठीक है, तो उसके केस में रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी। नंबर 6 टाइम पीरियड। जनरली लॉन्ग रन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट, कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक होती है। क्यों रे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इलास्टिक होती है? बिकॉज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो जाते हैं। शॉर्ट रन में राइट रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, बिकॉज शॉर्ट रन में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल करना इतना इजी नहीं, इनइलास्टिक। शॉर्ट रन में ओनियन के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गई, शॉर्ट रन में आप सप्लाई भी इंक्रीज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? इनइलास्टिक इन द नेचर रहेगा। आगे 7 बिकॉज लॉन्ग रन में यू कैन फाइंड आउट सब्स्टिट्यूट। आप बोलोगे चलो ये नहीं मैं दूसरा देखता हूं, मेरे पास बहुत टाइम है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, राइट, यू कैन पोस्टपोन द कंजम्पशन, यू विल वेट, यू विल फाइंड आउट द सब्स्टिट्यूट्स, उसकी इलास्टिसिटी हायर रहेगी, राइट। बट वही अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो इन दैट केस यू विल रेडी टू पे व्हाटएवर द प्राइस इज। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केसेस में यू बिकम इनइलास्टिक इन द नेचर। कंज्यूमर हैबिट्स, अगर वो कम्युनिटी हैबिचुअल है, हैबिट में आती है कंज्यूमर्स के, लाइक फॉर मी टी, कोई लोगों के लिए ड्रिंकिंग, अल्कोहल, सिगारेट्स, लाइक गुटखा, राइट, वो सब चीजें हैबिचुअल है, कंज्यूमर हैबिट्स, उनके लिए कंज्यूमर इज रेडी टू पे, राइट, हायर द प्राइस, कितनी भी प्राइस है वो रेडी है। आई हैव सम एग्जांपल्स, लॉकडाउन में लोगों ने गुटखा, राइट, 40 रुपए का गुटखा 100 रुपीज में लेके खाया है, ऐसे भी अपने पास एग्जांपल्स हैं। सो राइट दे आर इनइलास्टिक बिकॉज दे आर हैबिचुअल, वो बोलते हैं हम उसके सिवा नहीं रह सकते। वो शराब के याद होगा अब भी लॉकडाउन में, लाइक बड़े बड़े लाइन लगे जब वो ओपन हुए, एंड इवन द प्राइस इज हायर स्टिल पीपल आर रेडी टू बाय। समझ में आ रहा है? सो अगर वो हैबिचुअल है तो रिलेटिवली आपको फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी प्राइस हो यू विल बाय इट, रिलेटिवली इनइलास्टिक। हैबिचुअल गुड्स की डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। 8 टाइड डिमांड, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय टाइड डिमांड? लास्ट 2 मिनट्स प्लीज होल्ड ऑन करो। व्हाट डू यू मीन बाय टाइड डिमांड? डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज टाइड
बंधी हुई है किसी दूसरे कमोडिटी के साथ। एग्जाम्पल मैंने पहले भी बोला था, मैं पेजेस परचेस करता हूं बिकॉज मेरे पास प्रिंटर है। प्रिंटर है इसलिए पेजेस की डिमांड है, पेजेस है इसलिए प्रिंटर की डिमांड नहीं। मेरे पास व्हीकल है इसलिए मैं पेट्रोल की डिमांड करता हूं, पेट्रोल है इसलिए व्हीकल की डिमांड नहीं करता मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई विल से पेट्रोल की डिमांड इज टाइड टू व्हीकल, पेजेस की डिमांड टाइड टू प्रिंटर। कॉमन सेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज टाइड। आपके पास रिचार्ज के पैसे इसलिए मोबाइल नहीं लेते, मोबाइल है इसलिए रिचार्ज लेते हो, मोबाइल है इसलिए उसका स्क्रीन कवर लेते हो। आपके पास स्क्रीन कवर है सर, अब इसका क्या यूज करो, चलो मोबाइल लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपने मोबाइल लिया इसलिए स्क्रीन कवर लगाया उसको, इसलिए उसको कवर ले लिया अलग से। आपके पास हेडफोन है, चलो मोबाइल लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। मोबाइल है इसलिए हेडफोन है, हेडफोन की डिमांड टाइड टू मोबाइल। सो इसलिए जो जिनकी टाइट डिमांड होती है ना, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप हेडफोन लोगे ही लोगे, तो योर डिमांड फॉर हेडफोन बिकम्स इनइलास्टिक। आपके पास व्हीकल है तो आप पेट्रोल लेगे ही लोगे, तो पेट्रोल की डिमांड, पेट्रोल की प्राइस कितनी भी हो फिर आप लोगे, डिमांड फॉर पेट्रोल बिकम्स इनइलास्टिक। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप पेजेस कार्ट्रिज लोगे ही लोगे, तो फिर उसकी प्राइस कितनी भी हो, तो डिमांड फॉर pages and cartridge with respect to demand of printer can be relatively inelastic. So जो products एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है उसके साथ दूसरी एक डिमांड होती है। पेजेस इज नॉट प्रिंसिपल, प्रिंटर इज ए प्रिंसिपल प्रोडक्ट, पेरेंट प्रोडक्ट, और उसको प्रिंट पेजेस कार्ट्रिज की डिमांड अटैच्ड है, टाइड है। सो जो कमोडिटी जिसकी डिमांड टाइड है, प्रिंटर की डिमांड टाइड नहीं है, पेजेस की डिमांड टाइड है, व्हीकल की डिमांड टाइड डिमांड नहीं है, पेट्रोल की डिमांड टाइड टू डिमांड फॉर व्हीकल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेडफोन्स की डिमांड इज टाइड टू डिमांड फॉर मोबाइल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जो प्रोडक्ट जिनकी डिमांड टाइड होती है आप वो परचेस करोगे ही करोगे, फिर कितनी भी प्राइस हो। सो उनकी डिमांड जनरली क्या होती है, इनइलास्टिक। मे बी मोबाइल की डिमांड इलास्टिक है बिकॉज मोबाइल इज ए लग्जरी आइटम, उसकी डिमांड इलास्टिक है, बट विथ रिस्पेक्ट टू दैट हेडफोन की डिमांड इनइलास्टिक है। बिकॉज जनरली देखो ना, आप अमेजोन पे अगर आप मोबाइल देखते हो यू विल गेट मेनी सब्सटीट्यूट्स, इसलिए मोबाइल हैज रिलेटिवली हायर इलास्टिसिटी, रिलेटिवली इलास्टिक। बट जब आप मोबाइल लेते हो तो उसके साथ बाकी चीजें आप लेते हो तो उनकी डिमांड बिकम्स रिलेटिवली इनइलास्टिक। आपने कार परचेस की तो कार के साथ एक्सेसरीज भी लेते हो, तो एक्सेसरीज की डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू कार बिकेम इनइलास्टिक। समझ में आ रहा है? आप एक्सेसरीज इसलिए कार नहीं लेते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो टाइड डिमांड, जो प्रोडक्ट की डिमांड टाइड है उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है बिकॉज आप वो परचेस करोगे ही करोगे। बहुत सारी कमोडिटीज जनरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड एक दूसरे से टाइड होती है, बट आपको ढूंढना पड़ेगा किसकी डिमांड किसके साथ टाइड है, कौन सा पेरेंट प्रोडक्ट है। वो पेरेंट प्रोडक्ट की डिमांड में भी इलास्टिक एंड इलास्टिक हो सकती है, बट जिस उसके साथ जो प्रोडक्ट अटैच्ड है उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी विथ रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द पेरेंट प्रोडक्ट। नंबर 9, नंबर 9, ठीक है, प्राइस रेंज मैंने कवर किया है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, राइट, जो आपके डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिसाइड करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, जितने कम सब्स्टिट्यूट उतनी कम इलास्टिसिटी, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट इलास्टिसिटी रहती है, राइट। पर एंड मोनोपोली में रिलेटिवली लेस इलास्टिसिटी रहती है। अगर बहुत हाई रेंज या बहुत सस्ते कमोडिटीज है तो हम उनसे फर्क नहीं पड़ता, उनके प्राइसेस में चेंज होने से हम इनइलास्टिक होते हैं। बट जो नॉर्मल रेंज के है, मीडियम रेंज के है, उसके लिए हम सेंसिटिव होते हैं, इलास्टिक होते हैं। अगर कोई कमोडिटी हमारे एक्सपेंडिचर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मायने रखती है, उसकी प्राइस चेंज होने से हमें फर्क पड़ता है, हम इलास्टिक होते हैं। और ऐसे चीजें जिनका हम हमारे एक्सपेंडिचर में इतना फर्क नहीं पड़ता, हम उनके प्राइस चेंज होने से भी इतना सोचते नहीं, हम रिस्पॉन्स नहीं करते, हम इनइलास्टिक है, राइट। अगर कोई चीज का कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं, वो अर्जेंट नहीं है, वी कैन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम उसको नए सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ सकते हैं, तो ऐसे केसेस में उसकी इलास्टिसिटी हायर रहेगी, रिलेटिवली इलास्टिक। बट अगर अर्जेंट है, शॉर्ट रन है, मैं कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं कर सकता, उसके केस में, राइट, नेसेसिटीज एग्जांपल,
राइट, उनके केसेस में इलास्टिसिटी लेस रहती है, लेस देन 1 इन इलास्टिक। अगर कोई कमोडिटीज कंज्यूमर के हैबिट में है तो वो कुछ भी हो, उसकी प्राइस कितनी भी हो, स्टिल ही विल बाय इट, राइट। हिज डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज इन इलास्टिक एंड टाइट डिमांड जिस प्रोडक्ट की होती है उसकी डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। द लास्ट पॉइंट, एक ब्रांड होता है, देखो ब्रांड, पीपल आर ऑब्सेस्ड विद अ ब्रांड, बराबर ना। आई एम ऑब्सेस्ड विद नाइकी, आई एम ऑब्सेस्ड विद एडिडास, होते हैं लोग एज ब्रांड। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेट्रोल, एज ए पेट्रोल, एज सच पेट्रोल इज ए नेसेसिटी काइंड ऑफ थिंग, इसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी, लेस देन 1। हाउएवर पेट्रोल में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स है, एक भारत पेट्रोलियम, एक इंडियन ऑयल, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ईसार बोल के भी एक है। देयर आर सो डिमांड ऑफ ए पेट्रोल, डिमांड ऑफ ए पेट्रोल वीआईपी करके रखना, ये एग्जांपल बहुत बार पूछा है एग्जाम में। डिमांड ऑफ ए पेट्रोल is relatively inelastic, less than 1 necessity. Have your demand for a Bharat Petroleum petrol, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल की डिमांड इलास्टिक होगी बिकॉज उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स है। एक कमोडिटी की डिमांड में भी इनइलास्टिक हो सकती है, बट उसके जब आप अंदर जाते हो डीलर्स में, उनकी डिमांड इलास्टिक हो सकती है। पेट्रोल की डिमांड इनइलास्टिक है, बट भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल की डिमांड इलास्टिक है बिकॉज उसके सब्स्टिट्यूट्स है। मिल्क एज सच has a relatively inelastic demand. Milk as such has a relatively inelastic demand. But चितय का दूध, Govind, I don't know the names, XYZ, there are many substitutes. चितय के दूध की डिमांड इलास्टिक होगी। मिल्क एज सच हैज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, हाउएवर चितय का मिल्क हैज ए इलास्टिक डिमांड। गोविंद का मिल्क हैज ए कृष्णाई, हमारे इधर शायद से कृष्णा ही है, आई डोंट नो, ठीक है, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड में भी इनइलास्टिक हो सकती है, बट उसमें जो डीलर्स हैं उनकी डिमांड्स या उसमें जो ब्रांड्स हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक हो सकती है या इलास्टिक हो सकती है। आई मीन, सो वी शुड अंडरस्टैंड, क्वेश्चन में भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल का पूछा है या पेट्रोल एज सच पूछा है। मिल्क की डिमांड इनइलास्टिक, हाउएवर चितय मिल्क की डिमांड इलास्टिक है, ठीक है। सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड ऑन दिस, राइट, मेरा खत्म हो जाता है इलास्टिसिटी कंसेप्ट। हमने डिमांड इलास्टिसिटी किया है, कल हम सप्लाई इलास्टिसिटी करेंगे एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद द कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। प्लीज रीड द मॉड्यूल, मॉड्यूल पढ़ते रहो। इफ देयर आर डाउट्स प्लीज कीप ऑन आस्किंग मी डाउट्स, आई एम अवेलेबल इन बिटवीन द लेक्चर्स। जिसके डाउट्स होते तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है डाउट सॉल्व करना, ठीक है। सो on this note I will end today's lecture. Thank you. कल का टाइमिंग सेम रहेगा।